गोल्ड मेडल क्लैश, दिल्ली बनाम हरियाणा, इन दोनों टीमों का पूल ए में भी सामना हुआ था, इसमें हरियाणा ने 5 पॉइंट की जीत हासिल की थी। खिलाफ किया आपने, राजस्थान के खिलाफ सेमीफाइनल में किया, तो अब पहली रेड हरियाणा की। नितिन कप्तान टीम के पहली रेड के साथ सेटिंग कर रहे हैं राइट कॉर्नर को, और एक बहुत ही इसे कहेंगे कमजोर सी कोशिश जतिन खत्री की। पहला पॉइंट दे दिया है लगभग एक तोहफे में वहां पे नितिन को। The captain of Delhi, he is also their star raider, did very well yesterday. Can he repeat it against Haryana now? 7-on-1, remember, if you have 6 or more you can pick up the bonus point, and that's what he's probably looking. They're just going to line each other up, measure the opposition, so he'll start with an empty raid. Now for me, as far as Haryana is concerned, Ravi, he's the raider to watch out for, the number 8 jersey, Ayan. He's tall, he's quick, and he's in good form. This is what he does. What he does, he'll tempt you, and he'll start to make you commit some unforced errors, just like what the right corner did on that occasion, Ishant Malik. रेडिंग में अब नितिन सिंह दिल्ली के लंबे रेडर हैं, और 2 टचेस काफी खतरनाक लगाते हैं, जैसा कि राजस्थान के कॉर्नर्स को उन्होंने काफी परेशान किया था। रनिंग हैंड तक की कोशिश भी कामयाब नहीं, तो 2 और पर शूट यहां पे बड़ी फुर्ती से आए वहां सोमवीर, डिफेंडर हैं, ज्यादा लंबी रेड नहीं करेंगे। लेफ्ट कॉर्नर पे सोमवीर, और ये अब डू और डाई रेड है दिल्ली का। 2 एम्प्टी रेड के बाद तीसरी रेड में आपको या तो पॉइंट लेना है या पॉइंट देना है, और ये इस बार जिम्मेदारी ली है नितिन सिंह ने। The fact that you're getting to see a do or die raid just 2 minutes into this game is an indication that this game will be played at a very different pace. Well done. Excellent effort from Vishal Kumar. A tackle too close to the midline coming from the Haryana defender, Sombir, and that's not going to help the cause. So yeah, the fact that we're starting to see some empty raids, Ravi, is just an indication that this will not be fast-paced. This will be, like you said, a defensive battle, and so teams will take their time. बोनस की कोशिश नरेंद्र की, रेड के बाद ही पता चलेगा कि कामयाब थी या नहीं कोशिश, लेकिन फिलहाल वो बोनस लेने में कामयाब, तो हरियाणा की लीड अब 2 पॉइंट की हो गई है, 3-1 से आगे। नितिन सिंह फिर से दिल्ली के लिए, पिछली बार 1 पॉइंट लेकर गए थे जब लेफ्ट कॉर्नर सोमवीर ने बहुत लेट टैकल किया, वो भी डू और डाई में। डिफेंसेस को काफी पेशेंस दिखाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि डू और डाई में आपको टैकल की कोशिश करने की जरूरत नहीं है, आपको बोनस लेकर गए, खाली हाथ नहीं गए, बोनस लेकर गए। 3-2। Just look at Ayan's legs, look at the muscle in those thighs. They're very strong athletes, got really strong lower bodies, and it's a big requirement when you're a Kabaddi player that you have strong legs that can help you, give you a burst of energy and speed that will help you thrust past defenders, and that will help you make some escapes like that. They're just starting to make the defenders from Delhi commit some errors. This time the left corner, and Ayan once again picks up another point. ब्लॉक के लिए गए थे विशाल कुमार, लेकिन ग्रिप बना नहीं पाए। फिर से नितिन सिंह, पूरे साथ के साथ खिलाड़ी हरियाणा के कोर्ट पर, तो बोनस अवेलेबल है नितिन सिंह के लिए। तो तक की कोशिश कामयाब नहीं, टर्न बहुत फुर्ती से करते हैं, लेकिन ब्लाइंड टर्न नहीं, हमेशा डिफेंडर्स को फेस करना बहुत जरूरी है। और अब हरियाणा के कप्तान नितिन सिंह है दिल्ली के, और नितिन है हरियाणा के। Make sure you don't get confused. We have Nitins on both sides of the mat, but the good news is Nitin is winning. It's the Nitin, the skipper of Haryana, who picks up that point as he just rolls past the defender. So it's just 1 point each.
that teams are giving away. We haven't seen a multi-point raid. We've seen a few empty raids, do-or-die raids. Both of them are waiting for the other team to take the initiative, to force the issue. Look at that for a good kick, but just not good enough. Excellent team effort. That's the first big tackle. In fact, it's the first tackle point 5 minutes into this game. और अब ये सुपर टैकल का मौका दिल्ली के लिए, और अभी तो 5 मिनट का ही खेल हुआ है पूरा। दिल्ली पर प्रेशर आ गया है, 4 पॉइंट की लीड है हरियाणा के पास, लेकिन यहाँ पे सुपर टैकल करके वो प्रेशर डाल सकते हैं नितिन के ऊपर। हरियाणा के कप्तान नितिन रीड करते हुए कोशिश कर रहे हैं कि राइट कॉर्नर को धकेला जाए पीछे, लेकिन कामयाब नहीं। उज्जवल, दिल्ली के कप्तान, पूरे 7 के 7 खिलाड़ी हरियाणा के मौजूद, तो यहां बोनस की गुंजाइश है उज्जवल के लिए। या टच लेकर जिया, बहुत ही बेहतरीन इस बार राइट कवर ने, कप्तान है नितिन। 1 पॉइंट हरियाणा। तगड़ा नी होल्ड लिया इस बार बिना किसी हिचकिचाहट के। ये है नितिन का कमाल, राइट इन पे थे, तुरंत ही नी होल्ड ले लिया। सुपर टैकल का मौका दिल्ली के लिए, क्या वापसी कर पाएंगे? पकड़ने में कामयाब नहीं। इजी पॉइंट एक और हरियाणा के लिए। ये अयान लेकर जा रहे हैं, और वन मैन लास्ट मैन स्टैंडिंग दिल्ली। 1 पॉइंट हरियाणा। जर्सी नंबर 7 just starting to break away now. It's taken them about 6.5 minutes. Rahul Khatri is now the last man standing for Haryana. He was the one who took a blow to the head yesterday, and it's good to see him back on the mat. For a second you thought he had enough to go past, but excellent ankle hold from the left corner. And the second line of defense coming in just in the nick of time. It was Sombir in the left corner, and with that, it's the first roll out, and it's come from Haryana. And just like that, they've taken a 10-point lead 7 minutes into this game, and they're dictating terms very early on. रेडर आउट, क्योंकि फिसल के निकल गए थे लॉबी में। टर्न करते हुए फुटवर्क उनका कामयाब नहीं। ये देखिए, टर्न किया और उसके बाद पांव निकल गया लॉबी में। अर्पण, डिफेंसिव एरर्स दिल्ली की उन्हें बहुत महंगी पड़ गई हैं, और इसकी शुरुआत अनफॉर्चुनेटली उनके टॉप डिफेंडर विशाल ने की थी। इस बार डैश रेडर से 2 पॉइंट दिल्ली को। तो क्या वापसी की शुरुआत कर दी है नितिन सिंह ने? That was a good effort from Nitin Singh, the raider. Look at how quickly he scampers through. Just make sure he gets the hand down and through under the defender before he was dashed out. And so that's the first timeout called for the game. It comes from Delhi, as the coach has a few things to say. They don't want to give away too much of a lead. It was a 10-point lead, now down to a 7-point lead. Just stay within touching distance. Things change very quickly because it's a final. The pressure makes you do funny things, and it's the crowd with the kind of noise that they're making that will make you do funny things. Lots of noise here at the Abhay Prashal Sports Club. The kids are enjoying themselves. They're getting into the final as well. The atmosphere here really, really exciting. As the skipper Nitin comes on to raid for Haryana now. बोनस अवेलेबल है, कोशिश की डिफेंस, क्या उनके ऊपर प्रेशर बनाएगा? जिन्हें थोड़ा सा लंगड़ा रहे हैं, ये अच्छी खबर नहीं है। शायद एंकल ट्विस्ट किया, बोनस नहीं मिला। और अब दिल्ली के नितिन सिंह बाएं पांव में कुछ तकलीफ महसूस कर रहे हैं। नितिन सिंह चेन के ऊपर से डाइव लगाई, और 2 पॉइंट मिल जाएगा दिल्ली को। 2 पॉइंट मिलेगा क्योंकि एक डिफेंडर पहले ही आउट हो गया था। बिफोर स्ट्रगल आउट है पहले। ओके, 2 पॉइंट। जर्सी नंबर 10, जर्सी नंबर 10 यानी कि सोमवीर, जो कि लेफ्ट कॉर्नर में थे। 2 पॉइंट्स दिल्ली। तो अब पलटवार, दिल्ली ने हरियाणा को 2 खिलाड़ी बचे हैं हरियाणा के कोर्ट के ऊपर।
2 points. दो खिलाड़ियों को छू कर गए. Rahul Katre should be very disappointed because he's just gifted one on the way back. Look at that. He's like, wait, Ayan, let me come close. Get the touch on me. And just when Delhi were coming back in this game, they've conceded 3 points. What an effort from Ayan. He's raced to 7 points already. And that's given 2 more back on the mat for Haryana. They're back with 4. He slips and he gets into the lobby. Good effort by the right corner to stay out of reach. Haryana. As Nitin Singh doesn't get a touch. डिफेंसिव एरर्स बहुत महंगे पड़ रहे हैं दिल्ली को. कल इनकी डिफेंस ने बहुत ही जबरदस्त खेल दिखाया था सेमीफाइनल में राजस्थान के खिलाफ, लेकिन डिफेंस थोड़ा सा ओवर रीच कर रही है. टाइमिंग लेट हो रहा है, इसी कारण से पॉइंट्स देते जा रहे हैं हरियाणा को डिफेंस में. देखना है कि विशाल कुमार जो कि लेफ्ट कॉर्नर पर हैं वो कब एक्टिव होते हैं. एक अनसक्सेसफुल टैकल है उनका. टाइम आउट हरियाणा ने लिया है. नरेंद्र राणा कोच उनके समझाना चाहेंगे अपने खिलाड़ियों को कि थोड़ा सा सेटल डाउन करने की जरूरत है. टाइम आउट लेकर एक चेंज किया है. बाहर चले गए हैं अर्पण. ये राम मेहर सिंह हरियाणा सबसे सक्सेसफुल कोच प्रो कबड्डी लीग में पटना पायरेट्स के साथ. फॉर्मर एयरफोर्स मैन, एयरफोर्स से सर्विसेज से खेला करते थे. दिल्ली 2 पॉइंट हैं अभी तक दिल्ली के जो बोनस से आए हैं. 5 रेड पॉइंट्स. टैकल एक भी पॉइंट नहीं. ये कमजोर डिफेंडिंग. गंभीर पर राहुल खत्री की टोटल की कोशिश कामयाब नहीं हुई. This is when it gets a little tricky for a raider when you have 4 on the mat, 2 on one side, 2 on the other. So you've got to cover lot of distance, and that's why it's a problem. And Ujjwal, he came from behind when the raider was going from the right to the left side of the mat. Quite literally, it's the timing that matters, and he picked the right time. And look at that. He had no idea he was coming behind him, completely blindsided. और किसने किया? दिल्ली के कप्तान उज्जवल जो कि प्राइमरली रेडर हैं. उन्होंने रियलाइज किया कि पीठ दिखा दी है और उस समय रेडर को पकड़ लिया जाए. अब खुद ही रेड पर उज्जवल. तो टैकल में भी उज्जवल ने अपना खाता खोल लिया है. दिल्ली का खाता खोला है 1 पॉइंट से. रेड में अब तक 5 पॉइंट है नितिन सिंह के. उज्जवल के नाम कोई पॉइंट नहीं. They're still maintaining a healthy lead, 8-point lead, 8 minutes left in this first half. Nitin thus far, he's had the 6 raids, 3 points so far for Nitin. Do or die Delhi. डू और डाई रेड है दिल्ली के लिए. उज्जवल जो कि डू और डाई स्पेशलिस्ट हैं दिल्ली के. ये सबसे मुश्किल हुआ था. 4 एक रेडर पहले ही निकल गए थे लॉबी से बाहर. टर्न करते वक्त अपना फुटवर्क मिस किया तो पॉइंट दे दिया वहां पे गिफ्ट हरियाणा को. बहुत ज्यादा मिस्टेक्स. ये देखिए टच नहीं हुआ था. कॉपिन किक कामयाब नहीं. लीड 9 की हरियाणा के पास और ये ऑफिशियल टाइम आउट लिया गया है. ऑफिशियल टाइम आउट. शायद जो रिकॉर्डर है उनको बुलाया गया है. देखना है कि रेफरी क्या डिसीजन लेते हैं यहां पे. हरियाणा रॉन्ग रिवाइवल, 1 टेक्निकल पॉइंट. रॉन्ग रिवाइवल, गलत ऑर्डर में वापस आए खिलाड़ी.
दिल्ली के लिए जतिन खत्री। 4 ही खिलाड़ी हैं अभी दिल्ली के मैट के ऊपर और उनके मेन डिफेंडर विशाल कुमार अब तक कुछ खास नहीं कर पाए हैं। डू और डाई हरियाणा, यानी कि डिफेंस आराम से इंतजार कर सकती है। टच लेने में कामयाब, बेहतरीन लंच। He's just making such light work of the right corner. Ishan Malik once again picks him up for fun, just goes in straight towards him, extends his left hand, touches him and gets back as easy as it comes. He's been in such good form, Ayan. 8 rate points so far. We knew that he was going to be the main threat along with the skipper Nitin. दिल्ली के लिए सुपर टैकल का मौका। प्रेशर है नितिन के ऊपर, कप्तान हरियाणा के, और यहां पे टैकल लिया लेकिन विशाल कामयाब नहीं हो पाए। नितिन बहुत आराम से सेंटर लाइन के ऊपर लेकर निकल गए विशाल को, तो डिफेंस बिल्कुल भी कामयाब नहीं और दिल्ली ने अपना दूसरा टाइम आउट लिया है। देखिए पकड़ने की कोशिश, जब ग्रिप आपकी नहीं बन पा रही है ठीक से तो जाहिर है कि आपका टैकल कामयाब नहीं होगा। हरियाणा के पास 10 पॉइंट की लीड। कोच दलबीर सिंह थोड़ा सा यहां पे फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे हैं क्योंकि उनके डिफेंडर्स अपना काम सही ढंग से नहीं कर पाए हैं। Just starting to see this game slowly break away now in favor of the favourites, Haryana. It's a 10-point lead now, but more importantly, there could be an all-out looming large. He can pick up a bonus. And just 2 of them surviving now for Delhi. Look at that. It's a cat and mouse battle there. Just 10 seconds left on the rate clock now. He's got to make something happen. And you sometimes spend a little too much time than you should be. 1 second too many. And he's paid the price. This time, Narendra, the defender. बोनस तो ले लिया और यहां पे दिल्ली ने ऑल आउट दे दिया है उनको। ये दूसरा ऑल आउट है जो कि हरियाणा ने इन्फ्लिक्ट किया है दिल्ली के ऊपर। लीड अब उनकी 13 पॉइंट की, 23-10 की लीड, और अब दिल्ली को कुछ जल्दी करना पड़ेगा वर क्योंकि टैकल पॉइंट सिर्फ 1 है उनके पास। आज उनके डिफेंस बिल्कुल भी कामयाब नहीं, इस कारण से हरियाणा के रेडर्स के पास 13 पॉइंट्स हैं, दिल्ली के रेडर्स के पास सिर्फ 6। बोनस जरूर 3 लेने में कामयाब रहे हैं। नितिन सिंह इस बार परस्यूट डाइव किया और नितिन सिंह ने वापस पकड़ने की कोशिश लेकिन कामयाबी नहीं मिली। तो परस्यूट जो किया नरेंद्र ने वो सक्सेसफुल। Got about 4 minutes left in this first half. 14 points now. You're just starting to see a little difference in the pedigree and the skill between the two teams. An attempted dubki from Rahul Khatri. It's not going to work. 1 point Haryana. And he will have to pay the price. In fact, it's Ujjwal, it's not Rahul Khatri, it's the skipper. And he's now finding it a little too hard. That's his 7th raid, Ravi. He's yet to get a single raid point. Very different from last evening. उज्जवल के नाम सिर्फ 1 टैकल पॉइंट है, अब तक कोई रेड पॉइंट नहीं, और यही मुश्किल की बात है कि नितिन सिंह ने 5 पॉइंट लिए तो जरूर है लेकिन डिफेंस जो है वो अपना काम नहीं कर पा रही है। नितिन के नाम हरियाणा कप्तान 5 रेड पॉइंट, कोई ज्यादा जल्दबाजी नहीं उनके खेल में। लेफ्ट कॉर्नर और अब लगता है वार्निंग देंगे रेफरी क्योंकि जिस समय रेडर हरियाणा जर्सी नंबर 8 ग्रीन कार्ड ड्यूरिंग राइट कोचिंग। आप रेडर को बता नहीं सकते, पीछे से इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते हैं अपने कोर्ट से, ये नियमों के खिलाफ है। प्रेशर पूरी तरह से दिल्ली के ऊपर क्योंकि 15 पॉइंट की लीड बना ली है। फर्स्ट हाफ में 3 मिनट से कम का समय बाकी। You can just see that the pressure is starting to tell. Now suddenly they're just a bit under the pump. Delhi, 15-point lead is a very, very sizable lead.
going in to the end of the first half. And so what Haryana will start to do is this: they slow the game down only because of the advantage that they have. If anything, it's Delhi that have to grab the bull by its horns, and they've got to make the moves. लेकिन नवनीत अभी दिक्कत यह है कि दिल्ली के बुल्स के पास हॉर्न्स नहीं है, क्योंकि दोनों रेडर बाहर हैं। टाइम आउट हरियाणा। उज्जवल और नितिन सिंह दोनों ही कोर्ट से बाहर हैं, तो अभी उनके पास जो लीड रेडर्स हैं वो मौजूद नहीं। हरियाणा ने टाइम आउट लिया है। देवेंद्र राणा यही समझाना चाहेंगे अपने खिलाड़ियों को कि थोड़ा शांति से रेड करें, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। ये है दिल्ली की कोचिंग स्टाफ। इस बार मेन कोच दलबीर सिंह नहीं गए। राम मेहर सिंह, वन ऑफ द टैलेंट स्काउट्स, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। रेड में दिल्ली के लिए हिमांशु। You can see now, you can just see the difference in Haryana's approach now. They'll just take their time. They're okay even if they don't go in with the tackles. But did he get a touch there? In fact, it was an empty raid. Oh, he's claiming a touch. 1 point Delhi. Yeah, he will Jersey get the number one touch. It was Himanshu, the raider. For a second, he thought that he wasn't going to get a raid point. Now, let's take another look at this. Where did that touch come? Came from the right cover, was it? The left cover, my apologies. जहां लेफ्ट कवर ने सोचा था कि राइट कॉर्नर जा रहे हैं, कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी होता है, लेकिन उसका फायदा दिल्ली को मिल गया। ओ, फिर से लेट डैश। 1 point हरियाणा। जतिन खत्री बार बार वही गलती कर रहे हैं, लेकिन अब दिल्ली के लिए अच्छी बात यह है कि नितिन सिंह आ गए। बहुत लेट डैश करने की कोशिश, ग्रिप मिला नहीं। नितिन सिंह वापस आ गए हैं। 5 रेड पॉइंट इनके नाम। देखना यह है कि ये क्या कर पाते हैं, क्या उज्जवल को रिवाइव करवा पाएंगे। बोनस तो अवेलेबल है, लेकिन चाहिए उन्हें टच पॉइंट या रिवाइवल। टच क्लेम किया, जी हाँ, 1 point Delhi। बाहर जाएंगे अभी दोहान, जो कि राइट कवर है। The captain, Nitin, 5 raid points so far, along with Ayan, who's picked up 9. Both of them have just constantly been ticking the clock, the scoreboard for Haryana. They've picked up 15 raid points. They only have the 5 tackle points, but in context of this game, that is huge, because guess what? Delhi have just 1 tackle point in an entire half. 1 tackle point. And that's not going to work, because Ravi, we mentioned about the defense and how good they were yesterday. It's just been very different today, and it goes from bad to worse for Delhi as we inch closer to the 9 seconds of the first half. परफेक्ट एंकल होल्ड सोमवीर ने पकड़ा, फर्म ग्रिप, हाफ टाइम और इसके साथ ही हाफ टाइम भी हो गया है। तो 15 पॉइंट की लीड के साथ हरियाणा जाएंगे हाफ टाइम में, और उनकी डिफेंस ने अपना काम बखूबी किया है। 6 टैकल पॉइंट, जबकि दिल्ली के सिर्फ 1 ही टैकल पॉइंट है, और डिफेंडर्स ने काफी कमजोर खेल दिखाया है स्टार्टिंग 7 मैच पर ही। लेकिन दिल्ली के कोच अपने खिलाड़ियों को हिदायत देते हुए, दलबीर सिंह, तो यह है स्थिति अब तक। 1 टैकल पॉइंट हरियाणा के खिलाफ दिल्ली ले पाई है, 6 हरियाणा के, और काफी कमजोर खेल रहा है दिल्ली के डिफेंडर्स का। इसी कारण से हरियाणा के पास 15 पॉइंट की मजबूत बढ़त बनी हुई है हाफ टाइम पर। रेड में हरियाणा रेड की शुरुआत करते हुए उज्जवल, दिल्ली के कप्तान। दिल्ली के डिफेंस को और बेहतर खेल दिखाना पड़ेगा, तभी वापस आने का मौका। जैसे इस बार बेहतरीन फॉलो लेफ्ट कॉर्नर सोमवीर का, चेज किया। यह है टाइमिंग की बात, बिल्कुल चेज किया। ये देखिए क्या खूबसूरती से वहां पे सोमवीर ने। He didn't have any momentum on that turn as well, so he was stuck there right in the middle of a sea of red bodies. But excellent from
the left side of the defense on that previous occasion. Now 16-point lead. What can Delhi do different in the second half? Because it's the defense that needs to come to the party. Been average at raid, but below par when it comes to defense. Just the 1 tackle point versus the 7 for Haryana. बोनस की कोशिश कामयाब रही, तो पहला पॉइंट हाफ टाइम के बाद लेने में कामयाब रहे दिल्ली। लेकिन अब 4 खिलाड़ी यानी 2 चेंज हैं नितिन के सामने। क्या वो कुछ कर पाएंगे? क्योंकि अगर नहीं कर पाए तो ये दूसरी एम्प्टी रेड हो जाएगी हरियाणा की, और फिर प्रेशर में आ जाएगी हरियाणा। फिलहाल दिल्ली की डिफेंस पेशेंस दिखाती हुई बहुत जरूरी है, क्योंकि इनकी अब तक की टैकल की टाइमिंग उतनी बढ़िया नहीं रही है। 26 सेकंड की रेड, पूरा समय लेते हुए। Just slow it down a little bit, Haryana. They've got a massive advantage, a 15-point lead. Look at that. It was a rare occasion. Oh, he's coming back for more. How many? He's picked up 2 points, in fact. Delhi. He's gotten the right corner and the right in, I would imagine. Let's take a look at that. That ankle hold came from the right corner, so that's one. Oh, it came from the cover defender. इसे कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ग्रिप एंकल होल्ड पे छूटा और डिफेंडर भाग निकला। इस बार कामयाब नहीं, फिर से एडवांस टैकल। राहुल खत्री इस बार एडवांस। 1 point हरियाणा। जर्सी नंबर 8 आउट। बहुत तेज डैश की कोशिश, लेकिन टाइमिंग बहुत खराब। गिफ्ट दे रहे हैं पॉइंट्स डिफेंडर्स हरियाणा को। It's also the first Super 10 of the match. Ayan for Haryana. He's just been so good and unfazed, really. He's not had any issues at all. You can try that dupki, but you need some momentum for you to push yourself through to the midline. But what do you do when you have 5 bodies on you? It's just going really at a tough pace for Delhi. बहुत ही जबरदस्त था यहाँ पे एंकल होल्ड हिमांशु का, शर्ट नंबर 2। इस कारण से मुश्किल 15 पॉइंट की लीड बनाए हुए, जो कि हाफ टाइम के समय थे। 3.5 मिनट का समय गुजरा है अभी सिर्फ सेकेंड हाफ में, लेकिन हरियाणा बहुत आराम से डिक्टेट कर रहे हैं इस मैच के पेस को। नितिन सिंह दिल्ली के टॉप रेडर। स्कॉपिंग किक की कोशिश, टारगेट है उनका सोमवीर। या सोमवीर पर ही निशाना साधा था और सोमवीर से गलती हुई। एंटिसिपेट कर रहे थे कि सोमवीर आएंगे। Such a critical position he occupies, the left corner. Very important role. Surprisingly, we haven't seen too many left corners make their mark in this season of the Khelo Games. We've seen a couple of really good right corners. Rajendra Bakar for Rajasthan. We've seen Ankit Singh for Bihar. So we have seen good right corners. Seen a good bunch of defenders come through in the cover region. Manjeet, for example, once again from Rajasthan. They've been a great combination, Manjeet and Rajendra Bakar. We've seen plenty of raiders make their presence felt. Ayan is certainly one of them. But interestingly, that very important position of left corner hasn't given us too many names. और लेफ्ट कॉर्नर क्रूशियल इसलिए होता है क्योंकि अधिकतर रेडर्स जो हैं वो राइट फुटेड होते हैं, और वो एक बार फिर से लेफ्ट कॉर्नर से कामयाबी नहीं मिलेगी। नरेंद्र गए थे वहां पे, जर्सी नंबर 6 आउट। एडवांस टैकल मिला नहीं। बड़े आराम से पॉइंट लेकर अब नितिन सिंह का पर्सनल टैली हरियाणा के लिए डू और डाई। बोनस अवेलेबल है अयान के लिए। सुपर 10 अपना पूरा कर चुके हैं अयान। टच क्लेम कर लिया, रनिंग हैंड टच। समय ज्यादा नहीं बिताने देंगे, यही कोशिश रहती है डिफेंडर्स की। हरियाणा जर्सी नंबर 6 आउट। दिल्ली के कप्तान उज्जवल चले गए बाहर। Just really love seeing Ayan raid. Minimal fuss.
Just makes it look so easy. Sticks to the basics. I think the left corner has paid the price there. Sombir, he stepped into the lobby, so he'll have to step out. It's a self-out. These are little gifts that you don't want to be giving. A schoolboy error coming from the left corner once again. That's number 10 out. So don't want to let it slip at this stage, Haryana. 13-point lead. 13 plus minutes left in this game. Now it is Nitin, the skipper, who comes back in again, blindsided again. You cannot be showing your back to one side of the defense for that long. And again he pays the price. Wonderful, great awareness from the right side of the mat in noticing that opportunity and pouncing on it. साहिल शोखंड ने फॉलो किया था और नितिन सिंह अब रेड पर. नितिन सिंह दिल्ली के टॉप रेडर हैं. नितिन सिंह 4 डिफेंडर्स मौजूद. ये सबसे मुश्किल हो जाता है 4 और 5 डिफेंडर्स में, क्योंकि आपको बोनस अवेलेबल है नहीं और वाइड और डीप चले जाते हैं डिफेंडर्स. अयान रेड पर हरियाणा के लिए. ज्यादा अटैक नहीं करेंगे क्योंकि फुल कॉम्प्लीमेंट है. बोनस की कोशिश नहीं, सिर्फ बॉक लाइन क्रॉस करके वापस आएंगे. इंटेंशन बहुत क्लियर कर दिया अयान ने. पीछे मुड़कर घड़ी भी देख ली. समय बिताना भी जरूरी है, तो कम से कम 25 सेकंड की रेड तो करेंगे ही करेंगे. जी हाँ, टाइम आउट दिल्ली ने लिया है क्योंकि महसूस कर रहे हैं कि हरियाणा इज प्लेइंग बाय द क्लॉक. यह हरियाणा की टीम, नरेंद्र राणा उनके कोच. $12 points the lead now. It was 15 points. A decent little passage of play for Delhi. Haryana on the flip side, you don't want to be complacent. This is the final, a gold medal at stake. Haryana second on the medals tally behind Maharashtra. Kabaddi, they would imagine as 2 goals in the bag, because the girls are suddenly favourites later this evening in the finals when they take on Maharashtra. It's a tough outing thus far for Delhi. He runs straight into a series of red bodies. चेन टैकल की कोशिश थी लेकिन लो थाई होल्ड किया वहां पे हिमांशु ने. नितिन को बाहर करके फिर से प्रेशर बना दिया है. टच लेने में कामयाब. एक और पॉइंट इजी. जर्सी नंबर 4 आउट. लीड 14. अब ये रेड करते हुए दिल्ली के लिए हिमांशु. पूरे 6 के 6 खिलाड़ी मौजूद हैं दिल्ली के खिलाफ हरियाणा के पास. इस बार डाइव लगाया था और बहुत क्लोज लैंड किया. लॉबी के भाग्यशाली रहे वहां पे नरेंद्र. Excellent attempt at a pursuit from Narendra. Quick jump, but he knew that he was so close to the midline that he wasn't too much of trouble. Even if he didn't get that touch, he would still be well away from the rest of the defensive unit of Delhi. Now Ujjwal comes back in again. I can't believe that he's yet to get off the mark. He had such a nice evening yesterday, the semi-final, but it's how quickly things change just one night later. He's found it really hard to get going. This is his 9th raid. He's the skipper of the team, and they would have imagined that they will get a lot of points from him, but it just wasn't meant to be. जी हाँ, सेमीफाइनल में सुपर 10 था उज्जवल के नाम, लेकिन आज वो अपना खाता भी नहीं खोल पाए हैं. सिर्फ 1 टैकल पॉइंट. अयान रन डाउन द क्लॉक, क्योंकि उन्हें पता है कि अब कोई जोखिम उठाने की जरूरत है नहीं. 14 पॉइंट की लीड है और कोई खास कोशिश करने की उम्मीद नहीं. उनकी फुटवर्क बता रही है कि इंटरेस्ट नहीं है उन्हें पॉइंट्स लेने में. समय बताना है अक्सर. जी हाँ, 26 सेकंड की रेड.
They'll take their own time now. This is the final match. There's a gold medal at stake. Himachal Pradesh are the defending champions in boys Kabaddi here at the Khelo India Youth Games. They aren't here in the final. Haryana would like to believe that they're going to get back what they think belongs to them. बोनस ले लिया है, दोबारा गए कोशिश करने, विश्वास नहीं था, बोनस नहीं बना था. डू और डाई रेड है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है. ये जोखिम कामयाब नहीं रहा. दिल्ली के हिमांशु शर्ट नंबर 7 में. डू और डाई हरियाणा. अब हरियाणा की डू और डाई रेड है. बोनस अवेलेबल नहीं है तो टच पॉइंट ही लेना पड़ेगा, वरना आप पॉइंट दे देंगे दिल्ली को. रेड करते हुए नरेंद्र डिफेंडर हैं, पकड़ लिए गए बहुत आराम से वहां राहुल खत्री द्वारा. और ये नवनीत, बिलीव इट और नॉट, 32 मिनट का खेल हो चुका है लगभग, और ये सिर्फ तीसरा टैकल पॉइंट है दिल्ली के लिए. तीसरा. And we spoke so much about their defense just yesterday. It's been a completely different game, and we spoke about it even before the start of the match in that pre-show as well. It's what pressure can do. It's the big stage, massive crowd, the cameras are on you, thousands from across the country are watching you. It's platforms like this that set you up for bigger stages. You want to get used to the pressure, and Delhi have just let the pressure get to them. Just going from bad to worse now. 15 points once again and 8 minutes left on the clock. हरियाणा के कप्तान नितिन फिर से रेडिंग में कोई खास रुचि दिखा नहीं रहे पॉइंट पिकअप करने की. रेडर्स कोई रिस्क नहीं लेना चाहते. अगर रिस्क लेना है तो दिल्ली को लेना पड़ेगा, क्योंकि उनको 15 पॉइंट की जो लीड दे रखी है वो कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं हरियाणा. टाइम आउट लिया है दिल्ली ने. दलबीर सिंह चेंज करना चाहते हैं दिल्ली, तो राहुल खत्री को बाहर निकाल के करमवीर मान को उतारा गया है. शायद डिफेंस को और ज्यादा करमवीर मान, 10 नंबर दलबीर सिंह. आज देखिए कितना फर्क पड़ गया. विशाल कुमार जिन्होंने 9 टैकल पॉइंट्स कल बनाए थे सेमीफाइनल में, आज 2 टैकल अटेम्प्ट किए हैं सिर्फ, और दोनों अनसक्सेसफुल. यही कहानी रही है दिल्ली के डिफेंस की, आज काफी कमजोर. The defensive play from Haryana now, where they've slowed the game down, is an opportunity for Delhi to come back. They've got to give it their all. They've got to change the tempo of this game. टेम्पो तो बदल रहे हैं हरियाणा के सोमवीर लेफ्ट कॉर्नर में. बेहतरीन डाइव उनका, और ये देखिए डबल नी होल्ड, दोनों घुटने पकड़ के वहीं पर दबोच लिया. और जब डबल नी होल्ड आता है तो आपको बिल्कुल भी लेवरेज नहीं मिलेगी. सुपर टैकल का मौका तो है दिल्ली के लिए, लेकिन नितिन ज्यादा डीप जाएंगे नहीं, क्योंकि वो उनको अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है पॉइंट लेने में. 16 पॉइंट की लीड है टीम के पास, जोखिम नहीं उठाना चाहते. वो कहते हैं ना, नॉट गोइंग फॉर ग्लोरी, प्लेइंग इट सेफ. Now Delhi cannot afford to play it safe. They've just got to let go and let loose, because there's a lot at stake. It's a gold medal at stake. They have nothing to lose. They're the ones trailing by 16 points with 6.5 minutes left. You've got to go for it. You've got to look for multi-point raids. You have to go for a few more tackles than you otherwise would. Haryana will continue to play a defensive game. They'll stay far away from you. They'll be okay with some empty raids as well. That's why this is a do or die raid. 2 पॉइंट मिल जाएंगे दिल्ली को. बहुत ही बढ़िया टैकल लिया करमवीर मान ने, जो कि सब्स्टिट्यूट के रूप में आए हैं, स्टार्टिंग 7 में नहीं थे. 2 पॉइंट तो मिला, लीड 14 की. दिल्ली के लिए उनकी डिफेंस बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है. 5 पॉइंट तो आ गए हैं, लेकिन काफी नहीं है इस मैच में उनको वापस लाने के लिए. टैकल्स और ज्यादा श्योर और ज्यादा टाइमिंग के साथ. फिर से अयान लीड रेडर हरियाणा के 11 पॉइंट ले चुके हैं अब तक. बड़े आराम से क्लॉक को रन डाउन करेंगे. You know what's interesting? This is his 12th raid, Ayan. They have not even tackled him even once. And it just tells you that
if you're not targeting the lead raider, there's a problem. And Ayan has made raiding look so easy. I'll be honest with you, it isn't that easy. But it's just how easy Ayan's made it look. They haven't gone after him, and that's been a problem. निकल गए, डू और डाई रेड थी, लेकिन बड़े आराम से जतिन खत्री ने 1 पॉइंट लिया। बहुत लेट, टैकल की जरूरत थी नहीं वहां पे, क्योंकि डू और डाई रेड है। अभी भी 13 पॉइंट की लीड है। ये कप्तान हरियाणा के नितिन, 5 रेड पॉइंट थे इनके नाम, 1 टैकल पॉइंट भी। बहुत अच्छा लीडरशिप दिखाया है नितिन ने। और दिल्ली की डिफेंस आज बिल्कुल भी अपना काम नहीं कर पाई। जाहिर है कि जो टैकलिंग हो रही है उसमें वो कॉन्फिडेंस नहीं, वो टाइमिंग नहीं, इस कारण से हरियाणा के रेडर्स का भी काम काफी आसान था। कई लेट टैकल्स देखे दिल्ली की ओर से, जिसका फायदा मिला हरियाणा को। Now they're just trying to change the tempo of this game. It's Himanshu raiding, but they'll just stay away. They'll just stay away, Haryana. Now once again Ayan, and another do-or-die raid, which means we'll just continue to see so many empty raids come from them. And in the do-or-die raids, they'll try to make something happen. This is the first time, 36 minutes into this game, that Ayan goes to the bench. पहला सक्सेसफुल टैकल अयान के ऊपर, ये दिखा रहा है कि कितना ज्यादा इफेक्टिव रहा है आज रेडिंग हरियाणा का। और टैकलिंग में जो हिचकिचाहट रही है दिल्ली के डिफेंडर्स में, उसका खामियाजा भुगत रही है टीम। 12 पॉइंट की लीड हरियाणा के पास बनी हुई। 2 बार ऑल आउट, इस बार बहुत ही जबरदस्त एंकल होल्ड नरेंद्र का, कोई मुश्किल नहीं, एंकल होल्ड और लेते हुए टाइम आउट लिया है हरियाणा ने। टाइम आउट हरियाणा। परफेक्ट एंकल होल्ड, इसे कहते हैं ना कि डेड ऑन ग्राउंड, वहीं पर रख दिया, या हरियाणा की भाषा में कहें खूंटा गाड़ दिया वही। 3 out, 12 in. Look at how strategically Haryana have managed to maintain a double-digit lead all through the last 20 minutes at least, ever since they got into the double-digit leads. This is the boys' final. Later this evening at 3 p.m, the girls' final, Haryana versus Maharashtra. What a contest that's going to be, and you'll expect Haryana once again to dominate there as the mascot watches on. 4 in. Asha sitting in the stands with the students, enjoying Khelo India Youth Games Season 5 from Madhya Pradesh. We're in the final leg. It's the penultimate day here in Indore. We're bringing to you all the finals, the Kabaddi finals. We will have the tennis finals in just a bit. The girls doubles, what a battle that has been, the race to the final. We've seen some very interesting matches there. We'll switch over to Bhopal as well. Plenty of action coming there as we inch closer towards the final stages of what has been a wonderful season for the Khelo India Youth Games. यह 5वां संस्करण काफी रोचक रहा है, नए नए खेल आए और इस बार कोशिश 1 point दिल्ली, जर्सी नंबर 4 कामयाब नहीं रही। विकास ने हाफ हार्टेड अटेम्प्ट किया। रेड के लिए जाएंगे अब नरेंद्र। बोनस अवेलेबल है, वॉक लाइन क्रॉस के रेड को वैलिड कर दिया और अब चहलकदमी करेंगे। पॉइंट लेने का कोई इरादा नहीं है। आखिरी 2 मिनट, लीड 12 पॉइंट की, डबल डिजिट की लीड हो तो फिर खेल को पूरी तरह से स्लो डाउन कर दिया। टाइम आउट हरियाणा। हरियाणा ने टाइम आउट लिया है। कोच नरेंद्र राणा एक और चेंज करते हुए कप्तान नितिन को माफ कीजिएगा, अभी दुहान डिफेंडर को बाहर बुला लिया है और सुरेंद्र गढ़वाल
खिलाड़ियों को हिदायत दे रहे हैं नरेंद्र राणा कि किस तरह से वो खेल को स्लो डाउन करें। 12 पॉइंट की लीड गंवानी नहीं है। ये दलबीर सिंह कोच दिल्ली के। We're just about 100 seconds away from crowning the champions of season 5 of Khelo India Youth Games Kabaddi boys. It might just be fitting that the best team in the tournament will go on to get the gold medal. There have been no match today, Delhi, unfortunately. They were far, far better in every aspect of the game last evening in the semi-final. They haven't turned up really today. And the heavyweights, the favourites, Haryana, are making light work of them. Please. Another ankle hold from another corner defender as they further that lead. यहाँ पे शर्ट नंबर 2 हरियाणा के वो स्टेप बैक कर गए थे लाइन से बाहर। अब टैकल से पहले जी नहीं, कंसल्टेशन के बाद फैसला हुआ कि नहीं, वो लॉबी में बाद में गए थे टच के बाद। डू और डाई हरियाणा का ये डू और डाई रेड है। सुरेंद्र गढ़वाल टच लेने में कामयाब, 2 पॉइंट लेकर वापस जाएंगे गढ़वाल। जर्सी नंबर 3 and 1 आउट। डैश करने की जो कोशिश थी वो कामयाब नहीं हो पाई। बड़े आराम से अपना कोर्ट रिकवर किया। डैश कहीं बेहतर होने की जरूरत थी, वहां पे टाइमिंग बिल्कुल नहीं। वापस लीड 15 की, बचे हैं 35 सेकंड। It should be it. It really should be it. It's been dominance from Haryana. 1 point Haryana. They've just been tactically far better. They've just been better skilled, and they've capitalized on the moments, the little moments that mattered. They played a really tight game, didn't give anything away to the opposition, very few unforced errors. And now with a 16-point lead and 10 seconds left on the clock, you expect this to be pretty much the final raid of the game. Or maybe we'll just have one more with 3 seconds left on the clock. Jersey number 10 out. Match over. तो मैच हरियाणा ने जीत लिया है 17 पॉइंट से 42-25। 2 बार ऑल आउट किया, दोनों बार फर्स्ट हाफ में, और फाइनल स्कोर बिल्कुल जितना एक तरफा दिख रहा है, ये मैच भी उतना ही एक तरफा था। हरियाणा ने पूरी तरह से, और कोच नरेंद्र राणा को सेलिब्रेशन गोल्ड मेडल जीतने के बाद बॉयज कबड्डी का। Absolutely wonderful pictures. And it's no surprise that the boys in red, Haryana, are champions, and they're back to where they belong, right at the top of the Kabaddi mountain. A gold medal for the heavyweights, Haryana. बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस, और पहले 2 मिनट से ही डोमिनेट करने में काम रहे हरियाणा, क्योंकि उन्होंने जो टाइमिंग के साथ खेल को शुरू किया और मुश्किल में डाल दिया दिल्ली को। और दिल्ली अपने कमजोर डिफेंसिव एरर्स जो किए, उसका नुकसान। दिल्ली के खिलाड़ी थोड़े से निराश, सिल्वर जीतने की वो कोई खास खुशी नहीं, क्योंकि आपने गोल्ड हारा है, और ये मुश्किल की बात हो जाती है उनके लिए। गोल्ड जीतकर हरियाणा बेहद खुश। बहुत ही डोमिनेंट परफॉर्मेंस, 42-25 का ये परफॉर्मेंस। It's very nice to see the coach getting into the celebrations as well. It's been a great time for Haryana. They've had a wonderful road to the final and a 17-point win in the big game. Nobody saw that coming. We expected it to be a lot closer. But when you look at rate points, tackle points, the all-outs, pretty much in every single aspect of the game, Haryana dominated Delhi. They didn't give them a chance to get in the game. And that, I think, was a big reason as to why Haryana ended up on the